Employees Pension Scheme 1995, I draw the attention of the Labour Minister through you, sir, regarding the grave irregularity and injustice shown to the poor workers of this country. Sir, Employees Pension Scheme 1995, I am fighting this cause since 2014. Several representations and interventions and submissions were made in this house. Unfortunately, nothing positive is coming from the Labour Ministry. Sir, on 4/11/2022, the Supreme Court has given the full-fledged judgment. And by that judgment, the employees are entitled for the higher pension under the Employees Provident Pension Scheme. Sir, even after 2 years, that is lapse of 2 years, so far 1% of the total persons who have given the application has got only higher pension in the state of Kerala. Only 2% has got this pension. This is the media reports. Sir, you may kindly see that the total number of applications which have already submitted till August 7, 2024 is so far 17,48,775 applications were given. Only the EPFO has given the higher pension only for 8,401. So kindly see that even after 2 years, the Supreme Court judgment, the Employees Provident Fund organization is taking a very negative attitude towards the workers, not giving the higher pension. So my submission is higher pension has to be given at the earliest. And regarding the calculation of the pension also, a new method of calculation has been taken into, that is pro rata basis of allocation. That is pension 1/9/2000, before 1/9/2014 and after 1/9/2014, pensionable salary as well as pensionable salary and the average wages, that has been divided into 2 parts. Sir, it is against the act, it is against the scheme, and it is against all norms. So that has to be reconsidered. And the final point is regarding the minimum pension. So the minimum pension, sir, one second. In the 16 Lok Sabha, I have given a private member resolution. The whole house has unanimously consented to it, and a recommendation has already been given. So far, the minimum pension has been not increased. So I request for the enhancement of the minimum pension. These 3 issues has to be. संसद में एक बार फिर से उठा देश भर के 78 लाख EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते की सांसद NK प्रेमचंद्रन ने उठाई मांग। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सांसद NK प्रेमचंद्रन ने सोमवार को पेंशन को तुरंत लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करना चाहिए। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी EPS 95 के तहत उस पेंशन के हकदार हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि जल्द से जल्द उस पेंशन उनको दी जानी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे देश भर के 78 लाख EPS 95 पेंशन धारक जो कि लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को कम से कम 7500 रुपये प्रति महीना किया जाए और उन्हें महंगाई भत्ता और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। हमने आपको पहले भी एक वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से सांसद सुप्रिया सुले जी ने संसद में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को उठाया। एक बार फिर से सांसद NK प्रेमचंद्रन ने सोमवार को मांग की है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उस पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी EPS 95 के तहत उस पेंशन के हकदार हैं। 7 अगस्त 2024 तक उस पेंशन के लिए 17,48,775 आवेदनों में से EPFO ने केवल 8,401 ग्राहकों को उच्च पेंशन दी है। लेकिन बाकी पेंशन धारकों का क्या? देश भर में ऐसे पेंशन धारक भी हैं जो कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है। उनकी मांग है कि उन्हें सरकार उनके हक का पैसा दे दे, बढ़ती महंगाई के अनुरूप उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाए और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, ताकि बढ़ती उम्र में आने वाली बीमारियों से वो अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकें।
इसलिए सांसद एनके प्रेमचंद्रन जी ने सदन में मांग उठाई है कि जल्द से जल्द उच्च पेंशन उनको दी जानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 19 नवंबर 1995 को शुरू किया था, एक सामाजिक सुरक्षा का पहल है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं को पूरा करना है। EPFO के द्वारा संचालित ये योजना 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देती है। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि वे कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। लंबे समय से पेंशन धारक, सांसद, विपक्षी नेतागण लगातार मांग कर रहे हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों को महंगाई के अनुरूप उनकी पेंशन दी जाए, उनको महंगाई भत्ता दिया जाए और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, ताकि इस बढ़ती महंगाई के दौर में वो अपने और अपने परिवार के लिए मेडिकल सुविधाएं मुहैया करा सकें, अपने बच्चों की शादी कर सकें, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। इसी संबंध में लगातार सांसद इसकी मांग उठाते आए हैं। हमारे पेंशन धारक भी धरना प्रदर्शन कर अनशन कर सरकार से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। माननीय सांसद एनके प्रेमचंद्रन जी ने देश भर के 78 लाख EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को बड़े ही पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने पेंशन की गणना के संबंध में भी मुद्दा उठाया और सरकार से इसके ऊपर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। दोस्तों, माननीय सांसद एनके प्रेमचंद्रन जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी समर्थन करते हैं उनका, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनके लिए थैंक्स जरूर लिखें, ताकि हमारे EPS 95 पेंशन धारकों को, जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका हक जल्द से जल्द मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।